ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اسے اس گھر میں آئے صرف 2 دن ہی ہوئے تھے، لیکن اس کی نظروں نے جب سے دارم سید کو دیکھا تھا تب سے عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ چکی تھی، لیکن اس سے بات کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اسے سدرا نے بتایا تھا کہ دارم اس گھر کے تمام انتظامات خود سنبھالتا ہے، باقی سب بڑے بزنس پر دھیان دیتے ہیں اور اس گھر کے باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے، اسی لیے ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سدرا کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پیار اور احترام نظر آ رہا تھا۔ وانیا نامحسوس طریقے سے اس سے دارم کے بارے میں گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ پوچھتی ہی رہتی تھی۔ سدرا کو لگتا تھا کہ وہ اس کے بھائی کی عزت کرتی ہے، صرف اسی لیے پوچھ رہی ہے۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کے دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ونیز احمد نے جب دیکھا کہ وانیا دارم میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے تو اسے کمرے میں لے جا کر سمجھایا کہ اس کا خیال دل سے نکال دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت لمبے عرصے بعد ہمیں یہاں آنے کی اجازت ملی ہے، میں تمہاری وجہ سے کسی بھی طرح اپنے گھر والوں سے تعلقات خراب نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری کسی بھی بے وقوفی کی وجہ سے پھر ان سے تعلقات ختم ہو جائیں۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن وہ ہرگز بھی دارم سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اس پر ایسا کیا جادو کیا تھا جو بنا کوئی بات کیے بس دور سے ایک نظر دیکھنے پر ہی وہ اس کے خیالوں میں گم رہنے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف چلی آئی۔ وہاں الگ ہی گہما گہمی نظر آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ کسی خاص دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وہ کچن میں آ کر سامنے کھڑی اپنی مامی سے کہنے لگی، کیا بات ہے، آج گھر میں کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ اتنی تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ اس کی مامی اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، آؤ آؤ بیٹھو، تم تو اب نظر ہی نہیں آتی ہو، زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہتی ہو۔ کیا بات ہے، یہاں آ کر خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ اس نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اس کا ایسا رویہ محسوس نہیں کیا اور پھر اسے بتانے لگی کہ کوئی خاص مہمان نہیں آ رہا، بلکہ آج دارم یہیں پر کھانا کھائے گا۔ وہ بہت ہی کم گھر پر کھانا کھاتا ہے، زیادہ تر مصروف رہتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو اکیلے بیٹھ کر 2-3 نوالے کھا کر نکل جاتا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کب کہاں کھانا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے بیچارہ، پورا دن ادھر ادھر کاموں میں مصروف گزار دیتا ہے۔ آج اس نے کال کر کے خصوصی طور پر فرمائش کی ہے، اسی لیے اس کی فرمائش پر ہم کھانا تیار کر رہے ہیں۔ جب بھی وہ گھر پر کھانا کھانے کے لیے آتا ہے تو ہم ایسے ہی خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اتنے دن میں تمہیں یہ بات تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دارم گھر بھر کا لاڈلا اور ذمہ دار بیٹا ہے۔ گھر میں ہر کوئی اسے لاڈ کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ وہ سب کے کام بنا کہے کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا ایسا ہی ہے، بچپن سے ذمہ دار رہا ہے، گھر میں سب سے بڑا ہے تو شروع سے ہی اس کے کاندھوں پر ذمہ داریاں آ گئی تھیں، اور اس نے کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ ہم سب کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ تمہارے ماموں وغیرہ تو سب کے سب لوگ بزنس میں ہی مصروف رہتے ہیں، گھر پر توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ایسے میں دارم ہی ہے جو ہم سب کا دھیان رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر اپنے بیٹے کے لیے بہت سا پیار تھا اور ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ مگن سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی وقت شاہ بی بی وہاں پر آئی۔ وہ اس کی نانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک کافی جانی مانی ہستی بھی تھی۔ لوگ ان کے پاس دور دور سے دعائیں کروانے آتے اور گاؤں میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ فوراً سے شاہ بی بی کے پاس آتا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیتا۔ شاہ بی بی انصاف پر یقین رکھتی تھی اور سب کے ساتھ انصاف ہی کرتی تھی۔ گاؤں کے تمام معاملات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی دیکھ بھال میں بھی بھرپور حصہ لیتی تھیں۔ ان کی تینوں بہویں ان کی خوب عزت کرتی۔ شاہ بی بی کو بھی دارم سے خاص لگاؤ تھا۔ دارم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا تھا، یوں کہیں کہ وہ ان کا پوتا ہونے سے زیادہ ان کا بیٹا تھا۔ اس گھر میں صرف دارم ہی تھا جو ان سے کوئی بات منوا سکتا تھا۔ اتنے دنوں میں اسے اس بات کا احساس ہوا کہ دارم کی اس گھر میں ایک الگ ہی جگہ ہے۔
جو وہ کہتا ہے وہی پتھر پر لکیر ہو جاتا ہے. کوئی بھی اس کی بات سے انکار نہیں کرتا. وہ محبتوں سے گندا لڑکا تھا اور اپنے آس پاس اس نے صرف محبتیں ہی دیکھی تھیں, کبھی سازشیں نہیں دیکھی تھیں. گاؤں کی زمینوں کی دیکھ بھال بھی وہی کرتا تھا. ان تمام معاملات کو سنبھالنے کے بعد جب وہ گھر آتا تب بھی ہمیشہ سب سے خوش اسلوبی سے بات کرتا تھا. جب فصل کٹائی کا موسم آتا تب تو وہ پورا وقت ڈیرے پر ہی گزارتا تھا اور گھر آنا ہی بھول جاتا تھا. کوئی کام ہوتا تو اس کے خاص آدمیوں کے ذریعے اسے پیغام بھجوا دیا جاتا تھا. یہاں پر ساری لڑکیاں اس سے چھوٹی تھیں اور سب اسے بھائی کہہ کر بلاتی تھیں. یہ جان کر وانیا کو بہت خوشی محسوس ہوئی کہ کم سے کم میرے راستے میں کوئی کانٹا تو نہیں ہے نا, میں آسانی سے اسے اپنا بنا سکتی ہوں. یہ سب سوچتے ہوئے وہ یہ بھول رہی تھی کہ سامنے والے کو بھی اس سے محبت ہونا ضروری ہے, ورنہ اس طرح سے تو وہ محبت کبھی حاصل نہیں کر سکتی. لیکن وہ ایک جنونی قسم کی لڑکی تھی. اپنی یونیورسٹی میں بھی اسی وجہ سے مشہور تھی. اس کے اندر کا پاگل پن اور جنونی پن اسے اکثر ہی نقصان بھی پہنچاتا تھا. جس چیز کی چاہ کر لیتی تھی اسے پانے کے لیے ہر حد پار کر دیتی تھی. صحیح غلط کا فرق بھول جاتی تھی. اس کی ماں اپنی اکلوتی بیٹی کی ان عادتوں کی وجہ سے بہت تنگ تھی. ونیزا احمد نے سالوں پہلے یونیورسٹی میں ہی اپنے ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی. وہ جانتی تھی ان کے گھر والے شادی کے لیے اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے, کیونکہ اس وقت احمد کے پاس کوئی نوکری وغیرہ بھی نہیں تھی اور شاہ بی بی ایسے معاملات میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی تھی. ونیزا احمد نے جب بھاگ کر شادی کر لی تو گھر والوں نے ان سے مکمل طور پر تعلقات توڑ لیے. وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی. جب ان کے ہاں وانیا کی صورت ایک رحمت آ گئی. وانیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی. وانیا کی پیدائش کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی, اسی لیے انہوں نے اپنے سارے لاڈ پیار وانیا کو ہی دے دیے اور اسی لاڈ پیار نے وانیا کو بیکار کر کے رکھ دیا. وہ اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو ہنسی خوشی ٹال دیتی. انہیں لگتا تھا کہ ابھی بچی ہے, بڑی ہوگی تو خود ٹھیک ہو جائے گی. لیکن پھر یہی سب کرتے سالوں بیت گئے اور وانیا کے اندر ضد کرنے کی عادت پکی ہوتی چلی گئی. اسے لگتا تھا وہ جو چاہے گی اسے مل جائے گا, اور اگر کہیں سے اسے انکار سننے کو ملتا تو وہ پاگل پن پر اتر آتی تھی. کالج اور یونیورسٹی میں بھی لوگ اسے مغرور کہہ کر بلاتے تھے. اس کے باپ کا بہت بڑا بزنس تھا. محنت کر کے وہ اس مقام پر پہنچے تھے اور وانیا اپنے باپ کے پیسوں پر عیش کرنا خوب جانتی تھی. وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی. یونیورسٹی میں بہت سے لڑکوں نے اس پر لائن مارنے کی کوشش کی, بلکہ اب بھی اس کا ایک کلاس فیلو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا, لیکن اسے کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا. سالوں بعد جب ونیزا احمد کی ملاقات ایک دن اپنے بھائی سے شہر میں ہوئی تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے دور نہ رہ سکے, اور پھر اس کے ماموں انہیں ساتھ لیے یہاں پر چلے آئے. گھر والوں سے معافی تلافی ہوئی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا. شاہ بی بی بہت خوش تھی کہ ان کی بیٹی اتنے عرصے بعد آئی ہے. شاہ بی بی کی 2 ہی بیٹیاں تھیں. ایک کی شادی انہوں نے اپنے ہی خاندان میں کی تھی اور دوسری ونیزا احمد جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی. شاہ بی بی نے جب وانیا کو دیکھا تو انہیں لگا اس میں بالکل انہی کی جھلک ہے. وہ انہی کی طرح بہت خوبصورت تھی. جب سے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے ان کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی. اس نے ایک لمحے کو بھی یہ بات محسوس نہیں کی کہ یہ لوگ اس کی ماں کے بھاگ کر شادی کرنے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں. سب نے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا اور ساری چیزیں بھلا دی تھیں. انہیں یہاں تک دارم ہی لے کر آیا تھا. اس کی ماموں نے گاؤں کی حدود کے باہر انہوں نے اتار دیا اور خود اپنے آفس کی طرف چلے گئے. ان کا شہر میں ہی بزنس تھا. انہوں نے دارم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اپنی پپھو اور اپنی کزن کو حویلی تک بحفاظت لے جائے. جب دارم وہاں پر اپنی گاڑی لے کر آیا اور اس نے گاڑی سے نکل کر انہیں سلام کیا تو بے ساختہ وانیا کی نظریں اس کی طرف اٹھی کی اٹھی رہ گئیں. اس نے اتنا حسن
और इतनी कशिश किसी में नहीं देखी थी। पता नहीं ये मर्द कौन सी दुनिया का था। बेसाख्ता उसने सोचा। उसकी निगाहें उससे हट ही नहीं रही थी। दारम ने भी शायद उसका मुसलसल देखना महसूस किया तो नागवारी से रुख मोड़ लिया। वो जानता था कि वो हैंडसम है और लड़कियां अक्सर ही उसे यूं देखा करती थी, लेकिन उसे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और वानिया ने जब उसे यूं देखा तो वो कुछ ना बोल सका। वो इसकी कज़न थी और अभी ही आई थी। सालों बाद रिश्ता दोबारा से जुड़ने वाला था, तो उसने कुछ ना कहना मुनासिब समझा। उस दिन के बाद वो उन्हें घर छोड़कर अपने काम में ऐसा मसरूफ हुआ कि पलटकर देखने का मौका ही ना मिला। एक दो बार ही जल्दी जल्दी घर आया, कपड़े वगैरह चेंज किए और निकलकर चला गया। लेकिन आज रात उसका इरादा घर पर ही डिनर करने का था। उसकी अम्मी कई दिन से उससे कह रही थी कि घर आकर हमारे साथ खाना खा लो, तो उसने फ़ोन करके कह दिया था कि आज मैं घर आकर ही खाना खाऊंगा। इस दौरान वो वानिया अहमद और अपनी पुप्पो को भूल चुका था। जब वो घर आया तो हमेशा की तरह बहुत ही शानदार डिनर तैयार किया गया था। उसने अपनी अम्मा से कहा, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, उसके बाद खाना लगा दें, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके हाथ का बना खाना खाने के लिए मैं तरस गया हूँ। उसकी माँ मुस्कुरा उठी और कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे कपड़े तैयार हैं, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारी पुप्पो और कज़न को भी बुला लेती हूँ। ये सुनकर वो चौंक गया। उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि वो दोनों भी इसी घर में मौजूद हैं। उसे बेसाख्ता वानिया की उस दिन वाली हरकत याद आ गई। काश वो आज ऐसा ना करे। उसने बेसाख्ता ही दिल में दुआ की। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। सबसे मिलकर वो खाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। एक ही कुर्सी खाली थी और उसके बिल्कुल ऐन सामने वानिया बैठी हुई थी। उसने इसे नज़रअंदाज किया और अपनी पुप्पो से बातचीत करने लगा, लेकिन बार बार उसे महसूस हो रहा था कि वानिया की निगाहें उसके ऊपर हैं। उसे ये चीज़ बहुत उलझन में डाल रही थी और बहुत ही गुस्सा दिला रही थी। उसने एक बार गुस्से से घूरकर वानिया की तरफ देखा भी, लेकिन वो आगे से मुस्कुरा उठी, जैसे उसे इसके गुस्से की कोई परवाह नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स की कोई परवाह नहीं। शाबी भी उससे बातों में मसरूफ थी। उन्होंने भी वानिया की इस हरकत को नोट नहीं किया। दारम उसे सबके सामने टोक कर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा बजा तो उसने सोचा शायद उसकी अम्मा उसके लिए दूध लेकर आई होंगी। रात के इस पहर वो हमेशा इसके लिए दूध लेकर आती थी और कुछ देर बैठकर उससे बातचीत करती थी। इसलिए इसने बिना कुछ सोचे समझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो हाथ में दूध का ग्लास लिए वानिया नजर आई। उसे देखकर वो फौरन से अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अम्मा कहाँ पर है? वो दूध क्यों नहीं लाई? उसके पैर दर पे सवालों को सुनकर वानिया मुस्कुरा उठी और कहने लगी, वो काम में मसरूफ़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको दूध देकर आ जाती हूँ। वैसे आपका कमरा बहुत खूबसूरत है। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाते उसके कमरे की तरफ देखा और दूध का ग्लास सामने वाली टेबल पर रख दिया। दारम चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, लेकिन वानिया थी कि कमरे के बीच में खड़ी कमरे को ही देखे जा रही थी और उसकी तारीफों में रद्बुल लिसान थी। जब दारम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, रात काफ़ी हो गई है, आप अपने कमरे में चली जाएं। यूं मेरे कमरे में रुकना ठीक नहीं है। वानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? मैं आपकी कज़न हूँ, यहाँ पर रुक क्यों नहीं सकती? दारम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए, और फिर जब तक उसने दूध नहीं पी लिया वो तब तक वहीं बैठी रही। उसकी मौजूदगी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर जैसे ही उसने दूध का ग्लास रखा तो कहा, अब मैं सोना चाहता हूँ, आप यहाँ से चली जाएं। वो जितना उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वो उतनी ही उसे चिपकती जा रही थी। अगली सुबह वानिया की आंख खुली
तो उसने देखा घर में हलचल मची हुई थी। बाहर आई तो सामने ही एक लड़की और एक औरत खड़ी थी और उसकी माँ उस औरत से गले मिल रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में उसे पता चला कि वो इसकी छोटी मोमानी यानी दारम की चच्ची है। जब से वो इस घर में आई थी उसने अपने छोटे मामू की बीवी को नहीं देखा था। वो अपने मैके गई हुई थी। उनके साथ ही उनकी बेटी भी खड़ी थी। वो इसकी माँ की भाभी होने के साथ साथ उसकी कज़न भी थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं, इसीलिए खूब दुख बांट रही थी। अभी वो खड़ी यही सब देख रही थी, तभी उनकी बेटी उनके पास आई। उसका नाम माहा सैयद था। खुशदिली से इससे मिली, लेकिन वानिया को वो पसंद नहीं आई। पता नहीं क्यों इसे एक अजीब सा धड़का लग रहा था। उसने देखा था कि यहाँ पर सब दारम को दारम भाई कहकर बुलाती थी, लेकिन ये लड़की उसे दारम की हम उम्र ही लग रही थी। वो जो सोच रही थी कि उसकी राह में कोई कांटा नहीं है, तो अब माहा सैयद उसे अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा लग रही थी। वो एक कोने पर जाकर बैठ गई। वो सब लोग आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर दारम आकर बैठ गया। माहा से बेतकल्लुफ होकर बातचीत कर रहा था और माहा भी उसे दारम कहकर बुला रही थी। दूसरी तरफ बैठी वानिया अपनी जगह सुलगती जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि माहा को उसके सामने से उठाकर कहीं दूर फेंक दे। इसे उससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो पांव पर टखती अपने कमरे में चली गई। वो ज्यादा देर तक यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकती थी। दारम ने उसका जलना महसूस किया था, लेकिन वो खामोश रहा। माहा और उसके बीच बचपन से ही बेतकल्लुफी थी। दोनों ने अपना बचपन एक साथ गुजारा था और तकरीबन हम उम्र ही थे, इसीलिए वो उसके साथ बात करके अच्छा महसूस करता था। दूसरी तरफ वानिया अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर टहल रही थी। उसके अंदर की बेचैनी साफ वाज़ेह नजर आ रही थी। उसी वक्त वनीज़ा अहमद अंदर आई और कहने लगी, क्या हुआ? तुम यूं सबके बीच में से उठकर क्यों आ गई? कितना बुरा लगा। सब तुम्हारे बारे में सवाल कर रहे थे। वो गुस्से से उनकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और वो लड़की कौन है? माहा। उसका यहाँ क्या काम? इसकी माँ ने जब ये सुना तो कहने लगी, वो तुम्हारी कज़न है। इस तरह से बात क्यों कर रही हो? वो इसी घर में रहती है। अब क्या उसे घर से निकाल दें? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। अब शराफत से नीचे आ जाओ और आइंदा इस तरह की बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसे डपट कर वो नीचे चली आई, लेकिन वानिया पर तो कोई भी असर नहीं हुआ था। थोड़े दिन वहां रुकने के बाद वो वापस जाने के लिए तैयार थे। वो वहां से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपनी माँ से कहा कि कुछ दिन यहीं रहूंगी, उसके बाद वापस आ जाऊंगी। पहले तो वनीज़ा अहमद इस बात पर राजी नहीं हुई, लेकिन शाह बीबी के कहने पर मान गई। खूब सारी हिदायत करने के बाद वो वहां से निकल आई, लेकिन वानिया पीछे अपनी मर्जी करना चाहती थी। उसने दारम पर डोरे डालना शुरू कर दिए। एक दिन दारम अकेले में बैठा कोई काम कर रहा था। सब घर वाले गांव में किसी जनाजे में गए हुए थे। वानिया ने जाने से इनकार कर दिया था। दारम इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं था कि वो घर पर मौजूद है। वो चुपचाप अपने कमरे में काम कर रहा था। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और वानिया अंदर दाखिल हुई। दारम फौरन से चौंक गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग तो गए हुए हैं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम घर पर हो और इस तरह से मेरे कमरे में क्यों आई हो? वानिया ने कहा, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकती। आज तक मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। अब तुम मुझे इनकार मत करना, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो ना? और देखो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उसकी आंखों में मोहब्बत और जुनूनीपन देकर दारम ने कहा, मैं इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और जो बड़े फैसला करेंगे मैं उसी की इज्जत करूँगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके साफ इनकार करने पर वो अंदर से टूट कर रह गई और भागते हुए अपने कमरे में आकर रोने लग गई। अगले दिन ही उसने अपना सामान समेटा और यहाँ से वापस अपने घर चली आई।
पूरा वक्त वो अपने कमरे में बंद रहती और कोई बात भी ना करती। वनीज़ा अहमद परेशान रहती थी कि आखिर उसे क्या हुआ है। जब से वो उसे गांव लेकर गई थी तब से वो बिल्कुल बदल कर रह गई थी। वो जानती थी कि वो दारम को पसंद करती हैं, लेकिन दारम उसे पसंद करता है या नहीं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। पहले तो उन्होंने समझा कि ये वक्ती खुमार होगा, थोड़े ही दिन में वो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वानिया का ये पागलपन बढ़ता ही गया। हर वक्त वो दारम के बारे में ही सोचती रहती थी। उसने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ उसकी माँ सोच रही थी कि शाह बीबी से दारम और वानिया के रिश्ते की बात करती हूँ, हो सकता है कि वो मान जाए। यही सोचकर उन्होंने फ़ोन करने का सोचा, लेकिन उसी वक्त फ़ोन की बेल बजी। हवेली से ही फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया तो शाह बीबी ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि दारम और माहा की मंगनी तय होने वाली है। तुम लोग भी उस मंगनी में शामिल होना। 1 हफ्ता पहले आ जाना, तैयारियां भी करनी है। ये सुनते ही उन्हें लगा जैसे उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई है। अब वो अपनी बेटी से क्या कहेंगी? शाह बीबी की बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गई और फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद वानिया वहाँ पर आई और कहने लगी, आपने शाह बीबी से बात कर ली ना? उन्होंने क्या कहा है? वो चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी, फिर कहा कि उन्होंने हमें दारम और माहा की मंगनी के लिए वहाँ बुलाया है। ये सुनते ही वानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दारम की मंगनी किसी और से हो सकती है। उसे तो लगा था कि वो इसे मिल जाएगा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह से कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्हें 1 हफ्ते पहले जाना था, लेकिन वनीज़ा अहमद के लाख मना करने के बावजूद भी वो उन्हें वहीं छोड़कर खुद हवेली चली आई। हवेली में उसकी यूं अचानक आमद पर हलचल मच गई। सब हैरान थे कि वो वनीज़ा के बिना यहाँ पर कैसे आ गई है। दूसरी तरफ वनीज़ा भी उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ पर आकर उसका ध्यान हमेशा दारम पर ही रहता था। माहा को हंसते देखकर उसका दिल करता कि उसकी हंसी नोच ले। जो खुशी इसे मिलनी चाहिए थी वो उसे क्यों मिल रही है? वो ये सब सोचकर पागल हुई जा रही थी। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कई बार उसने शाह बीबी से बात करने की कोशिश की और दारम से भी, लेकिन दारम उससे बात ही नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन उसने ज़बरदस्ती उससे बात करने का सोचा। उसे धोखे से हवेली के पिछले हिस्से में बुलाया और कहा कि खुदा के लिए इस मंगनी को रोक दो, मुझसे मंगनी कर लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और वो रोकर उसके सामने मिन्नतें कर रही थी, लेकिन दारम ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मंगनी मेरे बड़ों ने तय की है और मैं उनके फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम ये सब करना छोड़ दो, कितना मेरी नज़रों में खुद को गिराओगी। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। उसे पता ही नहीं था कि वो इस लड़की का दिल अपने पाँव तले रौंद कर चला गया है, जो उसे मोहब्बत करती है। बस उसे अपनी मोहब्बत का इजहार का सलीका नहीं आता। दूसरी तरफ वनीज़ा अहमद ने जल्दी से सामान वगैरह बांधा और यहाँ पर चली आई, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हें वापस जाना पड़ गया, क्योंकि उनके शौहर की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो उनकी ख़राब तबीयत की वजह से मंगनी की तकरीब तक रुक नहीं सकती थी। सबसे माजरत की और वापस चली आई। उनकी कोशिश थी कि वानिया उनके साथ आ जाए, लेकिन शाह बीबी ने यह कहकर रोक दिया कि तुम लोगों की तरफ से कोई एक तो मंगनी की तकरीब में शामिल हो, चलो वानिया ही सही, लेकिन किसी का होना ज़रूरी है। हालांकि उसकी माँ चाहती थी कि वो यहाँ रहकर इस तकलीफ़ को अपनी आंखों से ना देखे। वो जानती थी कि वो कोई ना कोई पागलपन ज़रूर करेगी। वो इसीलिए परेशान थी, लेकिन फिर अपनी माँ के आगे कुछ ना कह सकी और वापस चली आई। वानिया हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। मंगनी की किसी भी तैयारी में हिस्सा नहीं लेती थी। वो सब लोग बार बार उससे कहते कि तुम भी हमारे साथ शॉपिंग पर चलो, तैयारी करो, लेकिन वो किसी की बात ना सुनती। माहा पर तो बात बेबात चिल्लाने लग जाती थी। माहा को समझ नहीं आती थी कि आखिर वो इससे इतनी नफरत क्यों कर रही है। उसे लगता था कि माहा ने दारम को उससे छीन लिया है।
हालांकि ये मंगनी सरासर बड़ों की मर्जी से हो रही थी। शाह बीबी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वानिया सबके साथ मिलकर तैयारियों में हिस्सा क्यों नहीं ले रही। उन्होंने शाम के वक्त वानिया को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आखिर क्या बात है, जब से तुम आई हो तब से काफी उदास उदास लग रही हो। अगर कोई मसला है या किसी बात ने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे बताओ। यहाँ पर हर कोई अपनी परेशानी आकर मुझे बताता है, तो क्या मैं अपनी नवासी की परेशानी नहीं सुन सकती? वानिया ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो इस मंगनी से बहुत ज्यादा खुश थी। क्या वो इनसे कह सकती थी कि दारम की मंगनी माहा के बजाय मुझसे कर दें? एक तरफ नवासी थी तो दूसरी तरफ पोता और पोती। वो किसका साथ देती? वो जानती थी कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि उसे ही गलत ठहराया जाएगा। इसीलिए वो चुपचाप वहां से उठकर आ गई। अब उसके दिमाग में एक अलग ही मंसूबा चल रहा था। जब से दारम ने इसे ठुकराया था तब से उसके दिल में एक आग लगी हुई थी। वो उससे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए जिस दिन मंगनी की तकरीब शुरू हुई तो वो भी सबके साथ तैयार होकर मंगनी की तकरीब के लिए हवेली के दालान में आकर बैठ गई। तकरीब शुरू होने में कुछ मिनट बाकी थे। उससे पहले कि दारम माहा को अंगूठी पहनाता, वो फौरन अपनी जगह से उठी और भागती हुई शाह बीबी के कदमों से लिपट गई। शाह बीबी ने अचानक से वानिया को अपने कदमों में देखा तो फौरन से परेशान हो गई और कहने लगी, वानिया बेटी क्या हुआ? तो वानिया ने रोते हुए कहा, शाह बीबी, इस हवेली में आप सबको इंसाफ देती हैं ना, आज मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगती हूँ। सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया और वानिया को ऐसा कौन सा मसला दरपेश है और कौन सा इंसाफ चाहिए जो वो इस वक्त ये सब कर रही है। सबकी निगाहें उसकी तरफ ही उठी थी। वानिया ने रोते रोते शाह बीबी से कहा, दारम पिछले 2 साल से मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर पागल बना रहा है। उसकी बात काफी हैरान कुन थी, क्योंकि उन्हें तो इन लोगों से मिले थोड़ा ही अरसा गुजरा था, तो 2 साल से वो दारम को कैसे जानती थी। जब यही सवाल उससे किया गया तो उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसमें कोई शक नहीं था कि दारम और वानिया एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे और इसी बात का फायदा वानिया ने उस वक्त उठाया। दारम उसकी बात सुनकर फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। वो शाह बीबी से और भी बहुत कुछ कह रही थी कि आप अब इसकी शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं। इसे कहें कि जो वादे मुझसे किए थे उन्हें निभाए, वरना मेरे माँ बाप की क्या हालत होगी। सब मेहमान तमाशा देख रहे थे। दारम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शाह बीबी ने हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। दूसरी तरफ दारम के अब्बा बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। किसी ने सोचा नहीं था। दारम ने जब देखा कि सब उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं तो चिल्लाते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें ठुकराया तो तुम इस बात का बदला मुझसे लोगी। उसकी ऐसा कहने की देर थी, सबको यकीन आ गया कि जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। तभी दारम के अब्बा आगे बढ़े और जोरदार थप्पड़ दारम के मुंह पर दे मारा। दारम से ये बात बर्दाश्त ना हुई, लेकिन उस वक्त सब मेहमान मौजूद थे और वो सब लोग किसी तरह का तमाशा नहीं चाहते थे। जितना तमाशा हो चुका था वही काफी था। वानिया जानती थी कि अब उसकी जीत हो जाएगी। उसी वक्त शाह बीबी ने ऐलान किया कि वानिया और दारम का अभी के अभी निकाह कर दिया जाएगा। माहा का चेहरा एकदम से जर्द पड़ गया। बेशक उन दोनों ने कभी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं की थी और बड़ों का फैसला ही कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी ऐन मंगनी के वक्त इनकार हो रहा था और उसकी जगह वानिया से शादी की जा रही थी। तो इसे दुख तो होना ही था, लेकिन उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी वानिया की बातों पर यकीन कर लिया था। दारम को उसकी सोच पर दुख हुआ कि कम से कम उसे तो भरोसा करना चाहिए था। आज भरोसा नहीं कर रही तो कल को शादी के बाद कैसे करेगी। अब माहा की जगह
दारम के पहलू में स्टेज पर वानिया बैठी थी। दिल ही दिल में अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका निकाह दारम से किया जा रहा है। यही तो वो चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार होने वाली है। थोड़ी ही देर के बाद दारम और वानिया की रुखसती कर दी गई। मेहमान हैरान थे कि यहाँ मंगनी की तकरीब में आए थे, और वो भी दारम और माहा की, और यहाँ पर वानिया और दारम की रुखसती कर दी गई है। बहरहाल सैयद हाउस की मकीनों को लगा कि उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली है। दूसरी तरफ दारम तो गोया अंगारों पर चल रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। जिंदगी में पहली बार उसके बाप ने उस पर हाथ उठाया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। सबके सामने उसका तमाशा बनाकर रख दिया था। उसने इसकी सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। वो गुस्से में कमरे का दरवाज़ा जोर से धकेलता अंदर दाखिल हुआ। सामने ही वानिया बैठी थी। उसे देखकर इसे शदीद गुस्सा आया और पास आकर उसका बाजू पकड़कर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सबके सामने ऐसा तमाशा लगाने की? और मैं कब से तुमसे 2 साल से मोहब्बत करता हूं? या मैंने कभी कहा कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है? इस तरह की बकवास क्यों की तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए और सबके सामने मेरा तमाशा लगाते हुए? वानिया ने अपने बाजू को छुड़वाया और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और ये सच है। मैं पिछले 2 साल से तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मैंने वहीं पर तुम्हें पहली बार देखा था। उसके बाद तुम्हें गांव में देखा, तभी मैं हैरान हो गई थी। मुझे बार बार देखने पर भी यकीन नहीं आता था कि तुम वही दारम हो। इसीलिए हर वक्त तुम्हें घूर घूर कर देखती रहती थी। क्या गलत किया है तुमसे प्यार करके? वो माहा तो तुमसे प्यार नहीं करती थी ना ही तुम उससे प्यार करते थे। और अगर उससे शादी नहीं हुई तो इसमें गलत ही क्या है? तुम मुझे कबूल नहीं करना, मत करो। मैं सारी जिंदगी भी ऐसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वो शशदर रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो लड़की इसे इतना प्यार करती है। लेकिन उसने इसकी जो बेइज्जती करवाई थी, वो इसका बदला उससे ज़रूर लेने वाला था। अगले दिन ही वो उसे साथ लिए हवेली से चला आया और सबसे कह दिया कि मैं शहर में ही रहूँगा और इसे भी वहीं रखूँगा। वो जानता था अगर उसने यहाँ पर इसे सबक सिखाने की कोशिश की तो सब लोग उसका साथ देंगे और वानिया की ही तरफदारी करेंगे। इसलिए बेहतर है कि उसे शहर ले जाया जाए। दूसरी तरफ वनीज़ा अहमद को जब ये सब पता चला तो वो भी दौड़ी दौड़ी यहाँ आ गई। उन्होंने शाह बीबी को सारी बात बताई और कहा कि वानिया ही उसके पीछे पड़ी हुई थी, दारम का तो कोई कसूर नहीं है। शाह बीबी ने दारम को बुलाकर कहा, ठीक है, जो होना था हो चुका। अब तुम उस लड़की को कुछ नहीं कहोगे। वो तुम्हारी कज़न और तुम्हारी बीवी है। लेकिन वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। सबने उसके साथ ज़बरदस्ती तो कर ली थी, लेकिन अब वो किसी की बात नहीं मानने वाला था। वो वापस शहर आया। यहाँ वो एक अपार्टमेंट में रह रहा था। वानिया उसका गुस्सा देखकर डर जाती थी। अपने जुनूनीपन में उसने वो सब करके उससे शादी तो कर ली थी, लेकिन अब शादी के बाद जब उसे करीब से जाना और गुस्सा देखा तो घबरा गई। वो सुबह से रात तक बाहर रहता, न जाने कहाँ होता था। वानिया में उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके कुछ भी पूछने पर वो आगे से काट खाने को दौड़ता था। एक दिन वो उसके रवैये की वजह से रो पड़ी, और जब वनीज़ा अहमद ने उससे फ़ोन करके उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने गलती कर दी इससे शादी करके। मैंने शादी ही की है ना, कोई जुर्म तो नहीं कर दिया। वो मेरे साथ ऐसे पेश आता है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। वो आगे से उसे समझाती रही कि जो कुछ तुमने किया था उसके बाद उसका हौसला है कि वो तुम्हें अपने साथ रखे हुए है। इसने गुस्से से कॉल कट कर दी कि वो उसी का साथ दे रही हैं। फिर एक दिन शाह बीबी ने उसे और दारम दोनों को हवेली में बुलाया और कहा कि मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ
कि तुम दोनों आपस में बहुत दूर दूर रहने लग गए हो। आखिर इसमें बुरा ही क्या है? वो तुमसे प्यार करती है और उसने तुम्हें पाने के लिए इस हद तक कोशिश की, और तुम हो कि आगे से नखरे दिखा रहे हो। जो होना था वो हो गया। अब ये सब करने से सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? अगर तुम इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो तलाक दे दो। जैसे ही शाह बीबी ने दारम को ये कहा तो वो दोनों चौंक गए। दारम को उसके साथ की आदत हो गई थी। इतने अरसे में देख लिया था कि वो उससे बहुत प्यार करती है, तो वो उसे कैसे तलाक दे सकता था? वो तो बस उसे सजा देना चाह रहा था। वो फौरन से घबरा गया और वहां से उठकर चला आया। पीछे वानिया ने हैरत से शाह बीबी को देखा और कहा, आप ये क्या कह रही हैं? अगर उसने सच में मुझे तलाक दे दी तो मैं क्या करूंगी? शाह बीबी मुस्कुरा उठी और कहने लगी, तुम परेशान ना हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखा नहीं था वो तलाक की बात सुनते ही कितना घबरा गया था। यही आखिरी तरीका रह गया है उसे राह रास्त पर लाने का। मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो तुमसे ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए मैंने ये बात की। वो तुम्हें पसंद करने लग गया है और तुमने इस बात को महसूस भी नहीं किया। वानिया को उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो तो हमेशा उससे उखड़ा उखड़ा ही रहता था, वो क्यों पसंद करेगा? लेकिन फिर अगले दिन दारम ने जब इस पर बिल्कुल गुस्सा वगैरह नहीं किया तो इसे लगा शायद शाह बीबी बिल्कुल सही कह रही थी। ये तो वाकई में मुझे पसंद करने लगा है। मैं जो भी बना कर देती हूँ चुपचाप बिना नुक्स निकाले खा लेता है, कभी शिकवा नहीं किया। मतलब ये मुझे अंदर से पसंद करता है और ऊपर से गुस्सा दिखाता है। थोड़े दिन हवेली में रुकने के बाद वो लोग शहर वापस आ गए। उसे पता चला था कि वो यहाँ पर कोई बिजनेस सेट कर रहा है, इसीलिए पूरा दिन मसरूफ रहता। एक दिन वो घर पर खाना बना रही थी, तभी उसे दारम की कॉल आई। इतने अरसे में पहली बार उसने अपने मोबाइल पर उसका नाम जगमगाते देखा था। खुशी से बेहाल होते उसने इसकी कॉल उठाई तो दारम ने कहा, आज खाना घर पर मत बनाना, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर उसने फौरन से चूल्हा बंद किया और भागती हुई अंदर आई। अपना सबसे बेहतरीन ड्रेस निकालकर खूब तैयार हो गई। दारम घर आया तो देखा कि वो तैयार हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार वो उसे यूं गौर से देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वानिया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मासूम भी थी। उसने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा कि तुम तो वाकई में बहुत प्यारी हो। चलो अब जल्दी से डिनर के लिए चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। फिर वो इसे साथ लिए बाहर आ गया। उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुरा उठी और पूरे इस्तेहकाक से उसके बराबर में आकर बैठ गई। उसे उम्मीद थी कि अब उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल हो जाएगी। दारम ने उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा तो वो खुद भी मुस्कुरा उठा। इस पागल लड़की की मोहब्बत ने उसे भी अपना दीवाना बना दिया था। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी को रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा दिया, जहां उसने इसके लिए एक बेहतरीन डिनर अरेंज करवाया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।